Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is on polycythemia. Very important topic related with the blood physiology. So, as its name indicates, poly for many, more than normal if a thing occur in the body, for that word poly is used. Cythemia for cells. So polycythemia means more than normal cells in the blood that are more than in normal count, especially red blood cell. For that a term is used polycythemia. This can be seen here in these two slides. If you take the blood, so normal picture of the blood film will be like that. These will be cells of the blood, other will be the plasma fluid. That compared with the upward slide, see the upward slide. So in the upward slide, the number of cells are more as compared to lower one. So it means in the same film, the normal count of red blood cell should be this, but the red blood cell count is that one. It means they are more than normal, so they will be called as polycythemia. जब रेड ब्लड सेल की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे पॉलीसाइथीमिया. क्लियर दैट? तो increase in red blood cell count simply is called as polycythemia, or we can say कि when red blood cell count increase than normal and it ranges in about 6 to 7 millions, even more than that, per cubic millimeter, the condition will be called as polycythemia. Clear? नॉर्मल काउंट रेड ब्लड सेल की 5.2 मिलियन एंड 4.7 मिलियन फीमेल होती, इसकी काउंट 6-7 मिलियन या इवन 10 मिलियन तक जा सकती, उस कंडीशन को हम कहेंगे पॉलीसाइथीमिया. क्लियर? टाइप्स क्या है? टाइप्स डिपेंड अपॉन काजेस के कितनी किस्म के पॉलीसाइथीमिया होता है. एक होता है प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया, कुछ होता है सेकेंडरी. प्राइमरी का मतलब कोई रीजन नहीं है, बोन मेरो की प्रॉब्लम की वजह से. सेकेंडरी का मतलब कोई वजह है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया. Primary polycythemia, it is the increase in the count of red blood cell due to tumor of the bone marrow. क्या होता है? Normally our red blood cells are formed in the bone marrow. In the bone marrow there are special stem cells which form red blood cell. If tumor occur in these stem cells and there is increased tumorous production of red blood cell, so their count will be more than normal. That will cause the polycythemia. This type of polycythemia is called primary polycythemia. कि प्राइमरीली डिफेक्ट कहाँ है? बोन मेरो के अंदर. उसके अंदर क्या है? माइलोप्रोलिफरेशन है, ट्यूमर है, जिसकी वजह से काउंट बढ़ रही है. अदर नेम फॉर दैट इज पोलीसाइथीमिया वेरा भी इसको कहते हैं. आल्सो एरिथ्रीमिया भी इसका नाम है. सो थ्री नेम्स: प्राइमरी पोलीसाइथीमिया वेरा, एरिथ्रीमिया is the tumorous production of red blood cell from the bone marrow that leads to increased count. Then secondary polycythemia क्या है? सेकेंडरी मतलब कोई वजह हो जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की काउंट बढ़ रही है. अब इसमें बात को समझे. ऐसी वजह जिसकी वजह से हमारे रेड ब्लड सेल की जो मशीनरी है बनाने की, बोन मैरो के पास सिग्नल आए कि आपने नॉर्मल से ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाने हैं किसी भी वजह से, तो वो होगा सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया. लाइक सेकेंडरी में क्या है? फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मोस्ट कॉमन है, उसकी डिटेल पे आएंगे. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, किसी को एम्फाइसीमा हुआ, पुराना फेफड़ों का मरीज है, लंग्स का, दैट लीड्स टू डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ द लंग्स, लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया. तो हाइपोक्सिया will lead to increased production of red blood cell, that will lead to polycythemia. Congenital heart disease, when oxygenation of the lungs is not proper, also in the congenital heart disease like VSD, so in that condition also decreased oxygen leads to increased production of erythropoietin. एरिथ्रोपोइटिन आके स्टिमुलेट करेगा बोन मैरो को, बोन मैरो नॉर्मल से ज्यादा आरबीसी बनाएंगे, तो वो कंडीशन क्या होगी? पॉलीसाइथीमिया. किसी को कंटिन्यू कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल माइन वर्कर है, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो रही है पुरानी, कंटिन्यू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में ज्यादा होने की वजह से भी क्या होगा? ऑक्सीजनेशन हेमोग्लोबिन की इफेक्ट होगी.
जिसकी वजह से भी इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनेगा हाइपोक्सिया की वजह से, तो बोन मैरो स्टिमुलेट होगा, आरबीसी ज्यादा बनेंगे, तो ये भी पॉलीसाइथीमिया की एक वजह है। क्लियर? Why due to kidney tumor secondary polycythemia, renal cell carcinoma, बाज लोगों के किडनी में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से, कौन सा प्रॉब्लम, ट्यूमर हो जाए जिसकी वजह से आरबीसी बढ़ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? यस, दैट हैपन, कि अगर किडनी में उन सेल्स का ट्यूमर हो जाए जो इरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं, सो इरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर ऑफ किडनी, that will leads to increase and excessive production of erythropoietin. That erythropoietin will stimulate bone marrow, marrow will form more than normal, more than normal red blood cell, so it will also cause polycythemia. तो ये कुछ रीजन है। लंग्स का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, इन तीनों की वजह से ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होगी, हाइपोक्सिया होगा जिससे पॉलीसाइथीमिया होगा, या ऐसा ट्यूमर जो इरिथ्रोपोइटिन ज्यादा बनाए जिसकी वजह से भी पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। नाउ व्हाट इज फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, ये हमने पढ़ना है। पॉलीसाइथीमिया occurs when someone lives at high altitude. This type of polycythemia will be called as physiological polycythemia. जो लोग मरी में, कागान नारायण बहुत ऊंचे इलाकों में रहते हैं या यहाँ से वहां जाते हैं, चित्राल, इन एरिया में, उन लोगों में क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड होता है, ऊंची, बहुत ऊंची जगह होती है, 16-17,000 फीट स्क्वायर मीटर ऊपर रहते हैं वो, तो वहां पे क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है, तो उन लोगों की बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांजिएंटली कमी हो जाती है, तो उन लोगों में स्टिमुलेशन किडनी की ज्यादा होती है आम लोगों, यहाँ हम लो एल्टीट्यूड वाले लोगों से, तो वहाँ एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन नॉर्मल से ज्यादा होती है, तो बोन मैरो भी स्टिमुलेट ज्यादा होता है जो कि आरबीसी ज्यादा बनाता है। तो इस किस्म का पॉलीसाइथीमिया जो हाई एल्टीट्यूड पर रहने की वजह से जो हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ, जिस हाइपोक्सिया की वजह से एरिथ्रोपोइटिन बढ़ा और एरिथ्रोपोइटिन ने बोन मैरो से आरबीसी की काउंट को बढ़ाया, इस किस्म के सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। यहाँ पर काज क्या है, हाई एल्टीट्यूड, लेकिन ये नॉर्मली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जस्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने से हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। क्लियर है? What will be the effects of polycythemia on the body? हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा पॉलीसाइथीमिया? बेनिफिशियल है, डेंजरस है? इज नॉट बेनिफिशियल नॉर्मली। तो जितना आरबीसी का नंबर ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कि एक तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नॉर्मल से ज्यादा ब्लड आ जाएगा, इंक्रीज इन ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, फ्लूइड कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट उसका बढ़ जाएगा, सेल्स की काउंट ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड विस्कस हो जाएगा। डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड जब फ्लो करेगा टिश्यूज में, वेसल्स में, कैपिलरीज में, तो वो स्लो फ्लो करेगा। अब स्लो फ्लो की वजह से क्या होगा, जो स्लगिश फ्लो है इसकी वजह से पेरिफेरी में ब्लड के फ्लो के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिसको कहते हैं इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब इंक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब बढ़ जाती है तो कुछ लोगों में पॉलीसाइथीमिया के जो होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, वो हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। नेक्स्ट के जब ब्लड फ्लो कम रहता है, स्लो ब्लड जाता है, तो देयर इज मोर चांसेस ऑफ द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इनसाइड द वेसल। सो एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको थ्रोम्बस कहते हैं वेसल में, उसकी फॉर्मेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ पॉलीसाइथीमिया। आल्सो इंक्रीज चांसेस ऑफ साइनोसिस। अब क्या होता है, साइनोसिस किसको बोलते हैं, व्हेन डीऑक्सीहेमोग्लोबिन इंक्रीजेस। अब हेमोग्लोबिन की मिकदार बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि आरबीसी काउंट ज्यादा है, तो स्लो फ्लो जब होता है टिश्यू के पास, तो टिश्यू को वक्त नहीं मिलता प्रॉपर ऑक्सीजनेशन के लिए, तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन पावर टिश्यू की थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि डिक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है, लंग से प्रॉपर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ला रहा, और टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन तो सप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन टिश्यू की मेटाबॉलिज्म चल रही, टिश्यू विल मेक मोर कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन जब नहीं मिलता हेमोग्लोबिन के साथ, तो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो दैट विल लीड्स टू साइनोसिस।
ठीक है, तो साइनोसिस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं इन केस ऑफ पॉलीसाइथेमिया. Thank you for today's lecture. What we have discussed today, we have discussed an important problem of the blood in which RBC count is more than normal. That is called as polycythemia. If the polycythemia occurs due to bone marrow tumor, that is known as primary polycythemia. If polycythemia occur due to any other issue, that is known as secondary polycythemia. The causes of secondary polycythemia may be physiological polycythemia, chronic respiratory disorders like emphysema, congenital heart problems, carbon monoxide poisoning, kidney tumor. All these leads to increased production of the red blood cell from the bone marrow. So in all these, as there is definite cause, so that is called as secondary polycythemia. Effect of second these polycythemia in the body will be it will lead to increase in blood volume, increase in blood viscosity, decrease blood flow, increase blood pressure due to increased peripheral resistance. Also, there is increased chance of blood clot formation, increased chances of cyanosis due to sluggish blood flow. Clear? So that will be its effect. Thank you so much for today's lecture.